Okay, good morning students. Welcome you all in our second lecture of standard 10th. In this lecture I decided to teach the chapter only because poem is not possible right now. So today I am going to start your second chapter and its name is Nelson Mandela. The whole chapter name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom and it is written by Nelson Mandela himself. So these are some points of the chapter. In this chapter we are going to learn about the apartheid movement that you know and you already learned it in SS chapter. Second is Nelson Mandela was Africa's first black president and you know that in South Africa whenever Gandhiji went there and he saw the racism and because of it he also joined the apartheid movement which was started by their leaders. So let's see what is given here. Nelson Mandela is saying in this chapter that what the differentiation or we can say that हम लोग बोलते हैं ना कि discrimination, what the discrimination was going on between black and whites. Those people who are white, they have given the good rights or their life is very good, and those people who are having the black complexion, their life is very bad. So just we have to see that, just you imagine whenever any black president, any black person who become the president of South Africa, it is a very proudable thing for the South Africa itself, because from this we come to know that whatever the black and white racism was going on there, it was stopped, and when only once it was stopped, then Nelson Mandela became the first black president of South Africa. So whenever he had taken the oath, जब उन्होंने वहाँ पे शपथ ली कि प्रेसिडेंट जब होते हैं तुमको पता है ओथ सेरेमनी होता है, वो वहाँ पे ओथ शपथ लेते हैं, तो उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से था, उन्होंने लोगों को क्या सिंबलाइज करके बताया, वही हमको ये चैप्टर में आज पढ़ना है. मैक्सिमम कोशिश करूंगी मैं हिंदी बोलने की, बट अगर मैं इंग्लिश बोलूँगी तो तुमको समझ में आएगा. सो हियर one question you have asked that apartheid movement is a political system that was going in the following countries. You just give me the answer. Three options here they have given: United States of America, South Africa and Australia. So what is the answer, students? Yes, can you guess? I have written the answer also over the board. So the answer is South Africa. Exactly. So here Mandela becomes the South Africa's first black president. So whenever he is symbolizing the people, so what he said, I am reading it from the text. So give the attention here. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rulers. Listen student, 3 centuries means after 300 years we can say. वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो ब्लैक कैटेगरी से थे और apartheid मूवमेंट जो है उनके काफ़ी लीडर्स हैं जिनकी वजह से उनको आज अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो ब्लैक होते हुए भी वहाँ के प्रेसिडेंट हो. क्योंकि जैसा मैंने तुम लोगों को बोला, साउथ अफ्रीका में रेसिज्म बहुत था जिसकी वजह से जो वाइट थे वही ब्लैक लोगों को सप्रेस करते थे. ब्लैक वाइट लोगों ने ही ब्लैक लोगों का जीना खराब करके रखा था. एक्चुअली वाइट और ब्लैक अलग अलग रीजन के थे, ऐसा नहीं, वो भी अफ्रीकन ही थे, बट देयर कलर कॉम्प्लेक्शन वाज वाइट, और जिसकी वजह से जिसका कॉम्प्लेक्शन ब्लैक था उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे थे. तो जब नेल्सन मंडेला वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने क्या बोला, देखो मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ. नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर द 3 centuries. मिस्टर मंडेला's African National Congress, this is the full form, ANC. ANC means African National Congress Party, won with 252 votes out of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तुमको पता है डेमोक्रेटिक क्या बोलते हैं, मोनार्क क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ द एसएस टॉपिक्स. मोनार्क मीन्स व्हाट कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर राजा होता है, और डेमोक्रेटिक मीन्स व्हाट वहाँ पे लोगों का राज चलता है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. सो यहाँ पे उनकी जो पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो पहली बार वन हुई थी. 400 सीट्स में से उनको 252 सीट्स मिले थे. इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री इन द हिस्ट्री. So the inauguration ceremony, listen, the inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by the politicians and dignitaries from more than 140
countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Here Nelson Mandela is saying that the inauguration ceremony was taken place in the Pretoria building, in the amphitheater building. It was a like auditorium, and so many politicians and dignitaries, means great officials, were come from nearly 100 countries around the world. And this was their first ceremony that with whenever he started his speech, so he symbolized the people with this word, never, never, never. Why he says so? Because he knew that the apartheid movement was, they were, we can say that उनको apartheid movement जो थी उसका वो शिकार बन चुके थे, और जिसकी वजह से उनको पता था कि आज जो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी अभी खोना वो नहीं चाहते थे, और वहाँ के लोग भी यही चाहते थे कि ऐसे मूवमेंट फिर से स्टार्ट होनी चाहिए नहीं. इसीलिए उन्होंने कहा कि नेवर 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 इन द हिस्ट्री दिस लैंड एक्सपीरियंसेस सो मच हैप्पीनेस, कि आज ये जो लैंड है, ये जो हमारी ज़मीन है, ये जो हमारी माता है भूमि, वो आज इतनी खुश है. क्यों? क्योंकि आज उसको पहली बार इतनी खुशी मिल रही है जहाँ पे ब्लैक और वाइट एक साथ बैठे हुए हैं, जो आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ, वो आज पहली बार हो रहा था. इसलिए उन्होंने ये वर्ड से उनका जो स्पीच है वो सिंबलाइज किया. एंड जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलरेड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. Why the president, that is Nelson Mandela, saying so? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट? देखो, क्योंकि लगभग 100,000 से ऊपर जो भी साउथ अफ्रीकन लोग थे, इंक्लूडिंग व्हाइट, ब्लैक और अदर कलर ऑल्सो, जैसे हम लोगों का कलर कौन सा होता है इंडियंस का? ब्राउनिश, है ना, ब्राउन कलर. तो जो भी कलर के लोग, सब कलर के लोग वहाँ मिक्स थे. नॉट कलर, कॉम्प्लेक्शन वी कैन यूज. उनका जो कॉम्प्लेक्शन था उनकी स्किन का, वो सारे लोग इकट्ठा हो गए थे एक साथ, वो गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे. वो ऐसा पहला ओकेशन था, वो ऐसा पहला इनॉग्रेशन सेरेमनी था जिसके अंदर इन लोगों को एक चांस मिला था अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए. और इतनी खुशी जो उनको थी वो उसी की वजह से थी कि 300 ईयर्स के बाद उनको ये चांस मिला था. तो तुमको पता है ऑब्वियसली जब हमें इतने सालों के बाद स्ट्रगल करने के बाद जो खुशी मिलती है उसका जो मजा है वो कुछ और ही होता है. सो I will start this chapter. Some hard words are there. I will read it if necessary. Then you can read from the textbook also. You are big enough now. Okay. So here, besieged by, it means surrounded by. Amphitheater means a building without a roof with many rows of seats rising in steps. So 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly designed by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering over of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been of seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as a second deputy president, and then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pleaded to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and watching world, I said. Here Nelson Mandela is saying that student, it was a dawn. वो 10th मई की सुबह थी जो बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी. सब लोग बहुत खुश थे. नेल्सन मंडेला बोल रहे थे पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी हूँ, मेरे आसपास काफ़ी सारे फेमस पीपल जो है वो मेरे साथ मीटिंग कर रहे हैं, मुझसे वो इनॉग्रेशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है, जिसके बारे में लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ क्या करने वाला है, क्या करना है, कैसा वो इवेंट होगा, उसका सारा अरेंजमेंट चल रहा था. आखिर में वो दिन आ गया और उन्होंने वो जो सेरेमनी है वो एम्फी थिएटर में करने का सोचा, जो एक यूनियन की एक प्रिटोरिया में बड़ी बिल्डिंग थी. वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऑल द सीनरी वाज लुक्स लाइक अ रेनबो.
Why? Because all the people of having different complexion were gathered there and enjoyed the event. वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अलग अलग रेस के थे, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, वो लोग बहुत ही खुश थे, इसलिए उन्होंने उसको रेनबो के साथ कंपेयर किया है। जब सेरेमनी स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने अनाउंसमेंट किया, उन्होंने ओथ ली, जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उनके बाद थैबो मेबिकी जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्लेस ली और ओथ लिया। उनके बाद टर्न आया नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला बोल रहे कि जैसे ही मेरा टर्न आता है मैं बहुत ही ओबीडियंटली उनको झुक के नमस्कार करता हूँ और उसके बाद मैं मेरा जो स्पीच है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो उन्होंने क्या स्टार्ट किया। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. उन्होंने उनकी शुरुआत ऐसे की कि आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे जो भी होप्स एस्पिरेशंस है वो फुलफिल हुए हैं और हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कैसे? विद द लिबर्टी, जो हमें न्यू बॉर्न, व्हाई ही सेड द वर्ड न्यू बॉर्न, क्योंकि न्यू बॉर्न यानी अब तक वो फ्री थे ही नहीं, उनको पहली बार वो फ्रीडम मिला था, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो लिबर्टी में एक्सपीरियंस करा हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन एफर्ट की वजह से हुई है, क्योंकि 300 साल तक उन्होंने एफर्ट्स किए, स्ट्रगल किया, देन आफ्टर दे गॉट दिस न्यू बॉर्न लिबर्टी और दे गॉट द लिबर्टी। दैट्स व्हाई ही टोल्ड द वर्ड और ही प्रोनाउंस्ड इट न्यू बॉर्न, इसलिए उन्होंने कहा कि न्यू बॉर्न लिबर्टी है। और आज मुझे सच में यहाँ पे जो भी ह्यूमंस प्रेजेंट है, एक इंसानियत की फीलिंग मेरे अंदर आ रही है एंड आई एम फीलिंग प्राउड फॉर इट। मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारे सारे लोग आज यहाँ पे इकट्ठा है, उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट होते हुए वो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, जो आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज जो सीनरी उनको दिखाई दे रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इट्स अ वेरी प्राइडफुल मूवमेंट। सो आगे वो बोल रहे हैं, देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी कुछ हार्ड वर्ड्स है, तुम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेना, वैसे तो मैं मीनिंग बता रही हूँ पैरेलली। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. उन्होंने यहाँ पे कहा, देखो स्टूडेंट्स, कि काफी सालों पहले we are considered here to be the outlaws. आउटलॉज यानी गुजराती में उसके लिए वर्ड है शायद बाहर पटिया, यानी जो बाहर से आते हैं और उनकी कुछ आइडेंटिटी होती नहीं है, सीधा रहना स्टार्ट करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ के इनहैबिटेंट्स थे, तो भी हम लोगों को आउटलॉज की तरह ट्रीट किया गया और बाद में आज जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, इट इज ए ट्रूली हैप्पीनेस। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम, वही फ्रीडम की एक फीलिंग मेरे अंदर आ रही है। आज तक जो भी हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हम लोग पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसके बॉन्डेज में फंसे हुए थे, उसमें से हम लोग पूरी तरह से निकल गए हैं। और ये जो ग्लोरी है, ये जो अचीवमेंट हमें मिली है, वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने उसके लिए स्ट्रगल किया, उनको मैं थैंकफुल बोलना चाहता हूँ। और आज मैं इतना ही कहूँगा कि फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, कि मैं अफ्रीका को भगवान का ऐसा ही उनका आशीर्वाद बना रहे और इस तरह से उसकी जो प्रोग्रेस है वो होती रहे, जो इसकी शुरुआत आज हम लोगों ने कर दी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है स्टूडेंट, तुम लोगों को उसको पैरेलली सॉल्व करना है, जैसा मैंने तुमको लेक्चर 1 में बोला था उसी तरह से सेम तुमको इसको फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड से देखो, स्पेक्टेकुलर एरे मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले और अ कलरफुल, वी कैन से अट्रैक्टिव। नॉट अनमाइंडफुल ऑफ मीन्स अवेयर ऑफ, जानकारी होना। देन शेवरॉन, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, वी शेप में जो भी डिजाइन होता है और जो भी पैटर्न होता है, जैसे हम लोग कभी कभी ऐसे खड़े होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे शेवरॉन। देन डिस्पाइज्ड, हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, सहमति ना होना या एग्री ना होना। तो अभी देखते हैं, देखो मैं रीड करूंगी। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन
The spectacular array of South African jets, helicopters, troop carriers rode in a perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. To a new government that had been freely and fairly elected only the moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police. Their chest bedrocked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। उन्होंने यहाँ पे स्टोरी बताई है स्टूडेंट, देखो उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ समय के बाद जैसे ही मैंने एड्रेसिंग कर दिया, मेरा स्पीच कंप्लीट हो गया, दे हैव माउंटेड हिज सीट, उन्होंने वो अपनी सीट ऑक्यूपाई करी। उसके बाद क्या हुआ, देखो जो जेट्स थे, तुमको पता है 15 अगस्त पे जो मिलिट्री के जेट्स होते हैं वो कलरफुल वे में स्काई के शोज होते हैं, तुमको पता होगा। उसी तरह का ये भी एक व्यू था। जो साउथ अफ्रीकन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स, जो जेट्स, उनका एक ट्रूप था। ट्रूप मैंने ग्रुप, इट इज अ ट्रूप इज अ कलेक्टिव नाउन हियर। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, जो जेट्स, जेट प्लेन्स वहाँ पे थे और उन्होंने शेवरॉन शेप मीन्स वी शेप में अपने आप को अरेंज करके रखा था और वो लोग उसमें से एक स्मोक छोड़ रहे थे। वो स्मोक के कलर्स थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये याद रखना है तुम लोग को। अगेन आई रिपीट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये स्मोक वो लोग थ्रो आउट कर रहे थे उसमें से। और नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, वो ये है स्टूडेंट, देखो नेल्सन मंडेला ने कहा कि जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, these officials are surrounded me, ये मेरे साथ ही सराउंडेड किए हुए हैं उन्होंने। और ये जो ऑफिशियल्स है वो ये ऑफिशियल्स है जो मुझे, सालों पहले की बात नहीं है, कुछ महीनों की बात मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, ये ऑफिशियल्स जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ओके, जो ऑफिशियल्स मिलिट्री के जिनके काफ़ी सारे मेडल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, मुझे आज वो सैल्यूट कर रहे हैं। कुछ महीने पहले की बात मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि कुछ महीनों पहले इन्हीं ऑफिशियल्स ने मुझे अरेस्ट किया था। ऐसा वो बोल रहे हैं कि इन्हीं ऑफिशियल्स ने मुझे अरेस्ट किया था और आज ये दिन है कि ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि वी कैन कॉल दिस इज नॉट द एनिमिटी, ये कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, दे आर लॉयल टू देयर नेशन, क्योंकि वो ईमानदार है, लॉयल है। किसके लिए? उनके नेशन के लिए। क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहले रशिज्म था, उसकी वजह से दे वर जस्ट फॉलोइंग द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे थे। गवर्नमेंट का जो उनको ऑर्डर था कि तुम लोगों को ब्लैक पीपल को अरेस्ट करना है, इसलिए वो उनको अरेस्ट भी कर रहे थे। पर आज हमारी गवर्नमेंट है तो वो लोग हमारी गवर्नमेंट को सैल्यूट कर रहे हैं। मीन्स व्हाट, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। दीज ऑफिशियल्स आर वेरी लॉयल। उन्होंने उनको क्या किया? प्रेज किया, अप्रिशिएट किया कि ऐसे ऑफिशियल्स होने चाहिए, गवर्नमेंट जो बोलती है उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसी तरह से उन्होंने जो ऑफिशियल्स वहाँ पे बैठे थे उनकी तारीफ की। The day was symbolized for me by playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel' I Africa and blacks singing Die Still, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Actually, student, before the apartheid movement, the situation was that they were singing the national anthem. You know, we are having the national anthem Jana Gana Mana. Same way they are having their national anthem. Its name is Nkosi Sikelel' I Africa. This is the national anthem of whites. ये जो नेशनल एंथम था ये वाइट लोगों का था और उनका ही राज होने की वजह से वो क्या करते थे, उनका ही नेशनल एंथम सबको बोलना पड़ता था, तुम्हारी इच्छा हो या ना, तुमको तो यही नेशनल एंथम बोलना है। उस दिन नेल्सन मंडेला ने कहा कि आज मैं व्हाइट और ब्लैक, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखने वाला नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस ही रहेगा नहीं। इसीलिए जो व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम था और जो ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम था, दोनों का नेशनल एंथम वहाँ पे प्ले आउट किया गया। लोगों ने उसको दिल से गाया, क्योंकि जो व्हाइट का था, जैसा मैंने बोला
कि कोसी सिकेलल आई अफ्रीका दिस वाज द नेशनल एंथम ऑफ व्हाइट्स एंड डाई स्टेम इज द नेशनल एंथम ऑफ ब्लैक। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान दो, कैसे मैं रिपीट करती हूँ। कोसी सिकेलल आई अफ्रीको वाज द नेशनल एंथम ऑफ व्हाइट एंड डाई स्टेम इज द नेशनल एंथम ऑफ ब्लैक। ये अलग अलग उनका था, तो जिसकी वजह से लोगों के माइंड में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए उन्होंने उस दिन दोनों नेशनल एंथम को वहाँ पे प्ले किया। काफ़ी लोगों को ये बात अच्छी लगी, काफ़ी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनको इग्नोर किया क्योंकि उनको यही चाहिए था कि व्हाइट्स को भी ऐसा नहीं लगे कि हमारा नेशनल एंथम अभी भूल गए, या ब्लैक को भी ऐसा नहीं लगे कि अभी हमारा ही चलेगा। नो, उन्होंने दोनों को बैलेंस करके इक्वली वो नेशनल एंथम के थ्रू लोगों को बताया कि वी ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं, चाहे वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, कोई भी एक दूसरे में को डिस्क्रिमिनेट करेगा नहीं। फिर आगे देखते हैं, देखो, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Angel Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched off their difference and erected the system of racial discrimination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. यहाँ पे उन्होंने कहा है, स्टूडेंट देखो, कि जब उस वक्त इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी, ओवर एक्साइटेड, मैं इतना खुश था कि आई कांट एक्सप्रेस माई व्यूज इन वर्ड्स, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स, मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से उसको एक्सप्लेन करूं। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग 20th सेंचुरी के शुरू की बात करें तो तब एक वॉर हुआ था जिसका नाम था एंग्लो बोर वॉर, जिसके थ्रू वहाँ के जो नेटिव्स थे, एक्चुअली व्हाइट पॉपुलेशन वाले, उन्होंने डोमिनेट किया किसके ऊपर, ब्लैक पॉपुलेशन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से वो एक बेस बन गया। और ये जो सबसे इनह्यूमैनिटी वाला जो कस्टम था वो स्टार्ट हो गया कि व्हाइट जो है उनको सुप्रीमेसी मिलनी चाहिए, ब्लैक जो है उनको नीचे सप्रेस करना है। तो जिसकी वजह से ये जो 20th सेंचुरी डिकेड में, लास्ट के डिकेड में हुआ, वो आज नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मेरा बर्थ हुआ तब मैं ये सिस्टम से इतना वाकिफ नहीं था, और तब मुझे पता चला कि शायद अगर ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा तो मैं इसको टर्न कर पाऊंगा नहीं। लोगों के जो राइट्स हैं, लोगों का जो फ्रीडम है, वो अगर उनके कलर के ऊपर से डिसाइड हो तो हमारी एबिलिटी कुछ भी काम में आएगी नहीं। यहाँ पे मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूँगी, स्टूडेंट, महाभारत में कर्ण जो था, उनको पता है कर्ण का कैरेक्टर, वो उसमें धनुष बाण चलाने में बहुत ही, वी कैन से दैट, अर्जुन जितना ही क्लेवर था, और उसको कभी भी, भीष्म ये बात जानते थे, और उन्होंने कभी भी कर्ण को मोटिवेट नहीं किया कि तू ये धनुष चला। क्यों? क्योंकि वो एक सारथी का पुत्र था, और उस वक्त सारथी के बेटे को अलाउ नहीं किया जाता था। उस वक्त ऑक्यूपेशन के ऊपर से उनके स्किल्स होते थे। सारथी का बेटा फ्यूचर में सारथी ही बनेगा, राजा का बेटा फ्यूचर में राजा ही बनेगा, जिसकी वजह से कर्ण जो है वो कैपेबल होते हुए भी उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से दुर्योधन ने उसको अपॉर्चुनिटी दी और उसने अधर्म का साथ दिया। मीन्स और देखो, यहाँ पे मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई चांस नहीं मिल रहा है, और अगर वो पर्सन खराब हो या अच्छा हो, वो अगर हमें वो चांस दे रहा है, तो हम लोग सिर्फ उसकी बात मानते हैं, तब हम लोग धर्म को भूल जाते हैं। और उसी वक्त, उसी तरह से यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने कहा है कि आज जो हमें फ्रीडम मिला है, हमने यहाँ पे कोई भी ऐसी मिसयूज नहीं किया राइट्स का, बिल्कुल हम लोग थ्रू प्रोसेस गए हैं, और यहाँ पे आज हमको एक फ्रीडम मिला है। मीन्स व्हाट, हमारे यहाँ पे ये जो आज जो हिस्ट्री हुई है वो कभी भी मिटेगी नहीं, और ये जो हिस्ट्री है वो चलती ही रहेगी, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा। एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करूँगी, देखो, यहाँ पे दो हार्ड वर्ड से, पहला है रॉट, इट मीन्स ओल्ड फैशन वर्ड फॉर फॉर्मल डन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डन और अचीव, उसके लिए रॉट का यूज यहाँ पे हुआ है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people
people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have known so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought or what their sacrifices had achieved. यहाँ पे उन्होंने थैंकफुलनेस किया किसको? जो पीपल जिनकी वजह से आज उनको ये फ्रीडम मिला था, आज वो यहाँ पे जिंदा नहीं थे, उनका एग्जिस्टेंस आज यहाँ पे नहीं था। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे उन लोगों को जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे जिन्होंने अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस किया, अपना बलिदान दिया, क्यों दिया? उनको ये फ्रीडम देने के लिए कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो रैशिज्म का चक्कर चल रहा है उसको मिटाने के लिए उन्होंने जो बलिदान किया और आज उनका बलिदान सफल हुआ है। ओके, वो जो उनका बलिदान था उसको एक वी कैन से डायरेक्शन मिली है, तो वो जो फ्रूटफुल फ्रूट उनको मिले हैं उसको देखने के लिए वो लोग मौजूद नहीं है। बट मैं दिल से उनको थैंक बोलूँगा क्योंकि उन लोगों ने ही और उन लोगों की वजह से ही आज हम लोगों को ब्लैक को ये राइट मिला है और उसी का ये फ्रूट है कि आज मैं आप लोगों का प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं एक खुद ब्लैक पॉपुलेशन होते हुए भी मैं सभी का लीडरशिप कर रहा हूँ क्योंकि तुमको पता है प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो वहाँ पे उन्होंने वही कहा है कि आज उनका ही एक हम लोग थैंक बोलेंगे कि जिनकी वजह से हमको ये जो फ्रीडम है वो मिला और आज हम लोग उसको फ्रूटफुल कर पाए। और आज ये लास्ट था, इसके बाद कभी भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। अभी स्टूडेंट देखो एक्चुअली ये चैप्टर लेंदी है तो आज तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, यहाँ तक मैंने पेज नंबर 20 तक मैंने कंप्लीट किया है। 20 के 2 पैराग्राफ हो गए, एक पैराग्राफ लास्ट बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगी। टिल देन तुम लोगों को क्या करना है, देखो ये जो चैप्टर मैंने तुम लोगों को पढ़ा है, अपार्थाइड मूवमेंट क्या है, नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने किसको किसको याद किया, ये जो सेरेमनी है वो कहाँ पे हुआ, ये सारी बातें तुम लोगों को एक बार रीड करनी है क्योंकि मैंने तुमको चैप्टर बताया, नो डाउट तुमको समझ में आया होगा, पर ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इट इज रिलेटेड टू एसएस, थोड़ा एसएस की तरह है, तो तुमको इसको थरोली रीड करना होगा क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसको शायद तुम लोग भूल सको। नाम याद करने की जरूरत नहीं, तुम लोग रीड कर लोगे तो नाम तो ऑटोमेटिकली यू विल लर्न, बट ये चैप्टर की स्टोरी क्या है, नेल्सन मंडेला क्यों प्रेसिडेंट बने, वो प्रेसिडेंट बनने के पीछे कौन से रीजन थे, प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने क्या सिंबलाइज किया, लोगों को क्या एड्रेस करके बताया, उन्होंने क्या क्या स्टोरीज बताई, उनके जब जन्म हुआ तो क्या सिचुएशन था, ओके उनके जो एंसेस्टर्स थे उनको कौन से सिचुएशन से गुजरना पड़ा, वो सारी बातें उन्होंने ये चैप्टर में एक्सप्लेन की है। थोड़ा चैप्टर बाकी है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, पर इतना तुम लोगों को क्या करना है, अच्छी तरह से रीड करना है। और ये जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन स्पीच में आते हैं तो मैक्सिमम कोशिश करो कि उसको तुम लोग सॉल्व कर पाओ। तुम लोगों के क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में ही मिलेंगे, डाइजेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और अगर कुछ भी डाउट आता है, यहाँ पे सारे हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, तो भी अगर डाउट आता है यू कैन फॉलो द डिक्शनरी, तो तुमको इजी पड़ेगा। वैसे तो मैंने तुमको स्टोरी बताई हुई है, मैंने ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा रीड किया क्योंकि तुमको एक एक पॉइंट बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो नेक्स्ट चैप्टर जब मैं इसका कंटिन्यूएशन जब स्टार्ट करूँगी तब तक तुमको ये चैप्टर रीड करके रखना है, तो ही समझ में आएगा। ओके, तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।